Okay, our scripture reading is from Matthew chapter 1 verses 18 to 25. और आज की जो हमारी बाइबल की रीडिंग है वो मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 18 से लेकर 25 आयत तक है. And we'll read that in a minute. In fact, I'll just read it, so don't worry. A question we will hear many times between now and December 25th is, are you ready for Christmas? और एक सवाल जो कि हम सबके जहन में बार-बार आएगा इस क्रिसमस के समय पे वो यही होगा कि क्या आप क्रिसमस के लिए तैयार हैं? I suppose what really is being asked is, have you put up all your Christmas decorations? और मुझे लगता है कि लोगों का कहने का मतलब यही है कि क्या आपने अपनी क्रिसमस की सजावट कर ली है? Have you finished your Christmas shopping? या आपने अपनी क्रिसमस की जो है वो शॉपिंग कर ली है? Have you mailed your Christmas cards? क्या आपने अपने क्रिसमस कार्ड्स को लिख लिया है? Have you put on your calendars क्या आपने अपने कैलेंडर्स को लगा with लिया है? all the places that you intend to visit? और वो सारी जगहें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं. So basically, are you ready for Christmas? और क्या आप क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? We're going to see a lot of people coming and going in the shopping malls. और हम बहुत से लोगों को देखेंगे जो कि शॉपिंग मॉल्स में भी आते जाते रहेंगे. And the Christmas rush is on. और हम देखते हैं कि क्रिसमस को लेकर लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा इस वक्त रश है. But sometimes the Christmas season becomes very hectic. लेकिन कई बार ये क्रिसमस का सीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक हेक्टिक सीजन हो जाता है. And because of that, we tend to forget much of the reason for the season. और इसी कारण कई बार हम भूल जाते हैं कि इस सीजन को मनाने के पीछे जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या है. Before yesterday night, there was a lot of British fans who were worshipping their God in Qatar. और हम देख रहे थे कि कुछ ही दिन पहले जो ब्रिटिश लोग थे वो कटार में अपने खुदा की जो है वर्शिप करते हुए नजर आ रहे For थे. them it was a big church and Christmas had come early. और उनके लिए वहां पर ऐसा था कि वो एक बहुत बड़े चर्च में बैठे हुए और उनके लिए क्रिसमस जल्दी आ गया है. And then a lot of other people who tend to forget the real reason for the season. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में भूल गए हैं कि क्रिसमस का इस सीजन का खास तौर पर रीजन क्या है. And the reason I'm asking you, are you ready for Christmas, is more than your activities. और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप तैयार हो, उसका मतलब यह है कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं. I'm asking about your attitudes. मैं आपके स्वभाव के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ. Because every once in a while I hear someone say, I just can't seem to get into the Christmas spirit. और बहुत सी बार मैंने लोगों को सुना है जो कि कहते हैं कि मैं क्रिसमस की स्पिरिट में नहीं आ पा रहा हूँ. Maybe you've said it too. और शायद हो सकता है कि आपने भी ऐसा कहा है. So with that in mind, we're going to look at what Christmas really is. और इसी को देखते हुए हम जानेंगे कि क्रिसमस का आखिरकार मतलब क्या है. Christmas really means, Christmas says that God became a human being. और क्रिसमस का मतलब यह है कि खुदा बाप जो है वो इंसान का रूप धारण कर आ गया. God expressed his love by living amongst us. और खुदावन ने अपने प्यार को जाहिर करा हमारे बीच में रहकर. He walked with us. वो हमारे साथ चला है. He spoke to us. उसने हमसे बातचीत की है. That's what Christmas means. और क्रिसमस का आखिरकार मतलब यही है. But what are the right attitudes we ought to have so that Christmas can really happen in our homes, in our lives? और क्रिसमस में हमें किस तरह के स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आना है जिसके साथ हमें ये पता चल सके कि हम किस मौसम में हैं. So for the next few hours, minutes, और कुछ अगले घंटे यानी कि मिनट्स के लिए we're going to look at the Word of God. और आइए हम खुदावंद के वचन की तरफ देखेंगे. Let's turn to Matthew chapter 1 verses 18 to 25 and just listen as I read, and Sherry, you might as well translate as we go through the Christmas story. और आइए हम देखेंगे इस क्रिसमस की कहानी को. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man, and he didn't want her to be exposed to public disgrace, he had it in his mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up,
he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. May the Lord bless what we have read from His holy word. और हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 18 से लेकर 25 आयत। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आज उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा होगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसे पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। Amen. Now, I really like Joseph. और मैं यूसुफ को बेहद पसंद करता He हूँ। doesn't stand in the spotlight for long. और हम देखते हैं कि वो ज्यादा देर जो है स्पॉटलाइट में नहीं We रहता don't है। know much about his life. हम ज्यादा उसके जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। But Joseph can teach us a lot about attitudes. लेकिन यूसुफ जो है वो हमें स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। Attitudes that can make Christmas real in our lives. और इस तरह के स्वभाव जो कि क्रिसमस को हमारे जीवन में खास बनाते हैं। Number one, सबसे पहली बात, Joseph teaches us to be ready to accept God's will. और सबसे पहली बात कि यूसुफ हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर की मर्जी है उसे हमने अपने जीवन में अपनाना है, Whatever it might be, चाहे कुछ भी हो जाए। Joseph was open to the will and the leading of God. यूसुफ तैयार था कि प्रभु उसको जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहता है वो वहां पर जा सके। Put yourself in that position. आप अपने आप को इस जगह पर रख के देखिए। Joseph thought his life was pretty well planned. और यूसुफ ने सोचा था कि उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से प्लान हो चुका He है was pledged to be married, और वो तैयार था शादी करने के which means लिए। that he and Mary had made all the necessary arrangements and the wedding ceremony was going to take place very soon. इसका मतलब है कि उसने और मरियम ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी और उनकी शादी की एक तरह से पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। They would live and settle down in Nazareth. और उनका पूरा प्लान ये था कि वो जल्दी शादी कर नाजरत शहर में रहना शुरू कर He देंगे would carry on with his carpentry's business. और वो अपना जो उसका कारपेंट्री का बिजनेस था उसे भी पूरी तरह से चलाता रहेगा। And they would live happily ever together forever and ever after. और उनका यही प्लान था कि वो आने वाले जीवन में बहुत ही खुशहाल जीवन को बिताएंगे। But then Mary came to him and said, Joseph, I'm expecting a baby. और फिर मरियम उसके पास आई और उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। It must have hit him like a bombshell. और मुझे लगता है कि इसे सुनकर वो हैरान और दंग रह गया होगा। He thought that Mary loved him so much as he loved her. और उसका तो यही मानना था कि जिस तरह से वो मरियम से प्यार करता है उतना ही प्यार मरियम भी उससे करती But है। now he was thinking she has been unfaithful. और अब उसके दिल में ये बार-बार विचार आ रहे होंगे कि वो उसके साथ वफादार नहीं रही है। It was definitely not his child. और उसे ये पूरी तरह से मालूम था कि वो बच्चा उसका बच्चा नहीं है। So the only conclusion that it could come to him was that she has been unfaithful. और वो यही बार-बार सोच रहा होगा कि वो उसके प्रति वफादार नहीं रही है। She had broken the bond that existed between them. उसे यही लग रहा होगा कि जो एक रिश्ता उन दोनों के बीच में था उसने उस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया है। And according to the law, Mary should be stoned to death. और अगर उस तरह के कानून के बारे में बात करें तो वो कानून ये कहता था कि उसे पथराव करके मरियम को मार दिया जाए। But Joseph loved her so much लेकिन यूसुफ जो है वो उससे इतना प्यार करता था that he didn't want that. कि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। So he decided to divorce her quietly on the side. उसने सोचा कि चुपचाप कर वो उसे छोड़ देगा, त्याग देगा। But as he was thinking this, an angel came to Joseph in a dream and basically said, Joseph, trust God.
और जब वो ये सारी बातों पर विचार कर रहा था, उसे सपने में एक दूत ने आकर कहा कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे। He's in this. और प्रभु इस सब के बीचों बीच है। You may not understand what's happening, शायद तुझे नहीं मालूम है कि इस वक्त क्या हो रहा but है, just trust God and everything will be all right. और सिर्फ प्रभु पर अपना विश्वास रख और सब कुछ तेरे जीवन में सही ही होगा। Joseph was a man of faith. और यूसुफ जो है वो विश्वास करने वाला व्यक्ति था। I mean, you know, sometimes it's hard to live by faith. और आप इसे कितने मानते हैं कि कई बार बहुत कठिन है कि आप विश्वास के सहारे If जीवित God रहें। always does what we accept Him to do, then maybe it's easy to have faith. और अगर हम हमेशा जो सोचते हैं प्रभु को हमारे जीवन में कर दे, तो फिर विश्वास किस काम का है? फिर हम किस तरह से अपने मसीही जीवन को जी But सकते when हैं? God doesn't do what we expect Him to do, और जब प्रभु वो नहीं करता है जो कि हम चाहते हैं कि वो करे, it's hard. तब बहुत मुश्किल है। Joseph trusted God. और यूसुफ ने अपना ईमान प्रभु पर रखा। Even though he must have had a list of questions a mile long, he still trusted God. और मुझे ये लगता है कि उस वक्त यूसुफ के जहन में बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसने अपना ईमान, अपना विश्वास जो है वो अपने खुदा बाप पर रखा। He believed that God was the best. उसका यही मानना था कि हमारा प्रभु जो है वो सबसे बेहतरीन खुदा है। You know, we find ourselves in much the same position as Joseph. और कई बार हम भी अपने आप को यूसुफ की तरह ही उस जगह पर पाते हैं। Christmas comes at a time of peace, और क्रिसमस जो है वो एक ऐसा समय है जब शांति आती है, but there's a conflict. लेकिन यहाँ पर तो बहुत मुश्किल But हालात there चल are रहे हैं। struggles, यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, disagreements. यहाँ पर आपस में बन नहीं रही है। Christmas comes as a time of joy, but there is so much sadness. लेकिन क्रिसमस को जब हम याद करते हैं तो ये खुशी का माहौल लेकर आता है, लेकिन कई बार कईयों के जीवन में दुख का माहौल भी है। Christmas comes as a time of love, but there is so much hatred in our world. और हम देखते हैं कि क्रिसमस जो है वो प्यार लेकर आता है, लेकिन दुनिया में तो आज बहुत सी नफरत है। Only this week we heard about the two deaths of Sister Moni and Sister Vipin. और इसी हफ्ते हमने दो बहनों की मौत की खबर सुनी है। Oh, there are homeless on the streets. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सड़कों पे बेघर बैठे हैं। We can't even keep warm in our own houses. और अब ऐसा माहौल है कि हम अपने खुद के घरों में जो है उन्हें गर्म नहीं रख सकते हैं। What about the homeless people? और सोचिएगा कि अगर हमारा ये हाल है तो जो लोग सड़कों पर हैं उनका क्या है? What about those in our community who are hungry at this moment in time? और उन लोगों का क्या जो कि हमारी कम्युनिटी में इस वक्त भूखे हैं? The price of food, basic necessities has gone through the roof. और अगर देखा जाए तो अब हर एक चीज जो है खाने से लेकर और बेसिक चीजों से लेकर सभी चीजें जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। The bank rates are at sky high. और बैंक के रेट्स जो है वो इस वक्त और भी दुगने तिगने हो चुके हैं। People have lost their homes, लोगों ने अपने घरों को खो दिया है, their businesses. उनके बिजनेस ठप हो गए हैं। Normal households can't afford to heat their homes up. और जो एक आम घराना है वो अपने घर को गर्म करने के लिए हीटिंग नहीं लगा सकता है। Electricity, gas, it's gone up. इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल जो है वो दुगने तिगने हो गए हैं। Knife crime, burglaries are on the increase. और अब देखिएगा कि इस वक्त क्राइम रेट जो है, घरों में चोरियां हो रही हैं और लोग जो है नाइफ क्राइम कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। We celebrate Christmas. और इन सब के बीचों बीच हम क्रिसमस को किस तरह से मना We सकते cry हैं? out like Joseph. और हम भी यूसुफ की तरह प्रभु को पुकारते हैं। God, how can this be but in a different situation? और यूसुफ की जैसी तो हमारी सिचुएशन नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते हमारे भी हालात हैं जहाँ पर हम प्रभु को पुकारते हैं। But like Joseph, we hear a still small voice from God saying, trust me. और यूसुफ की तरह हम भी प्रभु की धीमी सी आवाज सुनते हैं जो कि कहता है मुझ पर विश्वास रखो, Trust me. मुझ पर विश्वास रखो। God's ways are not always our ways. परमेश्वर के रास्ते हमेशा हमारे रास्तों जैसे नहीं His हैं। thoughts are higher than our thoughts. उसके विचार हमारे विचारों से कहीं महान हैं। We may never understand everything that God is doing this side of heaven. और हम हर बार वो बातें नहीं समझ पाते जो कि प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। But God says, trust me, it will work out. और प्रभु कहता है मुझ पर ईमान रखो और तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो वो होगा। Paul wrote, we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. पौलुस ने लिखा कि वो लोग जो कि प्रभु से प्यार करते हैं हर एक चीज उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। So Christmas happened because Joseph trusted God. क्रिसमस इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यूसुफ ने अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। And we need to learn to trust God
too in all circumstances. और हमें भी अपने जीवन में हर एक हालात पर प्रभु पर विश्वास और ईमान रखना है। The second thing Joseph teaches us is this: we need to learn to care about other people. और दूसरी चीज जो कि यूसुफ हमें सिखाता है वो ये है कि हमें दूसरों की परवाह करने वाले लोग बनना है। You know, Joseph's job was pretty simple. और यूसुफ का काम बिल्कुल आसान था। And that is the way we often portray him in our Christmas plays. और हमारे क्रिसमस के प्लेस जब होते हैं तब हम उसकी जो छवि बनाते हैं वो कुछ इस तरह की है। We picture Mary looking so angelic. और हम देखते हैं कि उन क्रिसमस ड्रामास में मरियम जो है उसे बहुत ही एक परी की तरह तैयार करा जाता है। We see excited shepherds. और हम देखते हैं कि जो वहाँ पर गडरिये हैं वो पूरे उत्साह से भरे होते हैं। And wise men there with their beautiful gifts. और हम देखते हैं कि वो मजूसी जो है वो सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आते But हैं। in the midst of them all is the Christ child in the manger. और इन सब के बीचों बीच हम देखते हैं कि वो एक बालक जो है वो चरनी पर पड़ा है। Who is so pure and clean. और जो कि बहुत ही संत और बहुत ही एक शुद्ध है। But somewhere on the side stands quietly Joseph. और हम देखते हैं कि इन सभी के बीचों बीच खामोश एक इंसान खड़ा है जो कि यूसुफ है। He isn't a starring role. और कोई वो बहुत बड़ा रोल उसे नहीं दिया गया है। But his part is so important. लेकिन उसका हिस्सा जो है वो बहुत जरूरी है। His task is this: उसका काम कुछ इस तरह से है। take care of Mary and the baby Jesus. और उसका काम ये है कि उसने मरियम और उस बच्चे उस बालक प्रभु यीशु मसीह की परवाह करनी, केयर करनी है। Joseph had the important role of caring for the needs of others. और इसका मतलब है कि यूसुफ को एक ऐसा काम दिया गया था कि वो दूसरों की केयर करनी थी। Christmas comes once a year. क्रिसमस जो है वो साल में सिर्फ एक बार आता है। And this season probably causes us to be more sensitive to the needs of others. और इस सीजन का मतलब ये है कि हम दूसरों की जो जरूरतें हैं उनका भी ख्याल रखें। But looking at that, we become so frustrated. लेकिन इन सभी चीजों को देखकर हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते But we हैं। still try. लेकिन हम ट्राई करते हैं। Maybe the finest descriptive title that can be given a church is this: a church that really cares. और मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि चर्च कलीसिया को दिया जा सकता है वो ये है कि एक ऐसा चर्च जो कि बहुत परवाह करता है। One of my favorite stories, which I like sharing around this time of the year, I'm going to share with you now. और मेरी सबसे फेवरेट कहानियां जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ शेयर करना वो ये है। It's about a couple with an 18-month-old son. और एक ऐसा कपल जिनका 18 महीने का बच्चा था। They've gone to spend a few days with their grandparents out of town. और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए चले गए। Christmas Day fell on a Sunday that year. और उस साल में क्रिसमस का समय जो है वो संडे को आया। The young father had to be back at work on Monday morning. और वो जवान बाप जो है उसे मंडे मॉर्निंग को काम पर जाना था। So the family attended church on Christmas Day together. और इसलिए वो सारा का सारा परिवार जो है वो संडे को चर्च एक साथ आए। And at the evening they said their goodbyes and they started the journey back home. और फिर वहाँ पर जो जिस परिवार से मिलने वो आए थे उन्होंने उनको अलविदा कहा और फिर वो अपना सफर करने के लिए अपने घर जाने के लिए चल पड़े। There weren't many filling stations, in other words, petrol stations open because of Christmas. और वहाँ पर हम देखते हैं कि पेट्रोल स्टेशन जो है वो कई बार नहीं खुले होते हैं क्रिसमस के समय पे। But they found one. लेकिन वहाँ पर उन्हें एक ऐसा पेट्रोल स्टेशन मिल गया जो कि खुला था। And it had a cafe next to it. और वहाँ पर एक कैफे था। So they stopped to get fuel and something to eat. उन्होंने सोचा कि यहाँ पे पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, कुछ खाने के लिए भी ले लेते So after हैं। filling up the car, they went inside the dimly lit cafe. और वहाँ पर पेट्रोल भरवाने के बाद वो उस कैफे में चले गए। Sat down. वहाँ पर बैठे। Found they were the only customers there apart from an old man sitting in the corner. उन्होंने देखा कि सिर्फ वही ऐसे कस्टमर्स थे वहाँ पर और एक बुजुर्ग आदमी भी वहाँ पर बैठा हुआ था। But then little Eric, their 18-month-old son, said, "Hello, hello," to the old man. और उनका 18 महीने का बच्चा जो था एरिक जिसका नाम था उसने वहाँ उस बुजुर्ग को बुलाना शुरू करा और उन्हें हेलो करना शुरू करा। And every time he said hello, there was a response from the old man. और जितनी बार उस छोटे बच्चे ने हेलो करा उस बुजुर्ग को, उस बुजुर्ग ने भी वहाँ पर उससे बात करनी शुरू करी। The old ragged-looking man was dressed with a coat several sizes too big for him. और वो बुजुर्ग आदमी जो है उसने एक ऐसा कोट पहना हुआ था जो कि शायद उसके साइज से 2 साइजेस बड़ा था। It was old and it was torn.
और वो थोड़ा पुराना था और फटा हुआ था His trousers were dragging on the floor. और उसकी जो ट्राउजर्स थी वो इतनी लंबी थी कि वो पूरे की पूरे फर्श पर जा रही थी His shoes had holes in one of them. You could actually see the toes sticking out. और उसके जूते इतने फटे हुए थे कि उसमें से आप उसके पैरों को भी देख सकते थे And he had an old hat tilted to one side. और उसकी एक पुरानी सी हैट थी जो कि एक तरफ को उसने पहनी हुई थी His face was unshaven. उसका जो चेहरा था वो बहुत ही बुरा लग रहा था And when he smiled, all his teeth were missing. और जब उसने मुस्कुराना शुरू करा तो उसके के सारे दांत जो थे वो मिसिंग थे And for some reason, this little Eric, 18 months old, was attracted to this old man. और किसी कारणवश जो है ये छोटा बच्चा जो है वो बार-बार उसे बुला रहा था और उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था He kept on saying, hello, hello. और वो बार-बार उसको हेलो कहकर बुला रहा था And every time he said hello, hello, the old man said hello, hello. और जितनी बार उस बच्चे ने उसे बुलाया उतनी बार उस बुजुर्ग ने भी उसका जवाब दिया Finally, the little man said, little boy, do you know how to play peekaboo? और फिर उस आदमी ने उससे कहा कि क्या तुझे पीकाबू खेलना आता है Sure enough, little Eric hid his eyes and played back peekaboo. और फिर उस छोटे बच्चे एरिक ने उसके साथ पीकाबू खेलना शुरू करा There was an instant relationship between the child and this old man. और फिर एकदम से वहां पर एक रिश्ता जो है हम देखने को मिल सकता था इस छोटे बच्चे और इस बुजुर्ग आदमी में And he was obviously, the old man was obviously a reject of society, what we call a tramp. और हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी जो है वो सोसाइटी के द्वारा रिजेक्ट किया गया था और जिस तरह से उसे हम कह सकते हैं कि वो एक भिखारी था Eric's parents felt uneasy. और एरिक के माँ-बाप जो है उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था The husband whispered to his wife, let's eat our food and get out of here as quick as possible. और उस कपल ने जो एक दूसरे के साथ बात करनी शुरू करी और उसके पिता ने एरिक के पिता ने अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी से खाना खाओ और हम यहाँ से जल्दी चले जाएं So they gulped it down. और फिर उन्होंने जल्दी खाया Then the husband said, I'll pay for the food and you take Eric to the car. और फिर पति ने कहा कि मैं पैसे देता हूँ और तुम बच्चे को लेकर कार में चले जाओ She started towards the door, और जैसे ही वो औरत जो है वो कार की तरफ जा रही थी और वो दरवाजे तक पहुंची hoping quickly to get out of the door, out of the cafe. और उन्होंने सोचा कि जल्दी इस कैफे से बाहर निकले But as they passed, और जैसे ही वो जा रहे थे Eric reached out with both arms towards the old ragged man and he wanted to be held by him. और फिर एकदम से वो बच्चा जो है वो भागता हुआ उस अजीब दिखने वाले बुजुर्ग की तरफ गया और वो अपने हाथों को फैला रहा The था old man sat there looking up at the mother और वो बुजुर्ग आदमी जो है वो उसकी माँ की तरफ देख रहा था and then he asked, और फिर उसने पूछा would you let me hold your baby? उसने कहा कि क्या तू मुझे अपने बच्चे को पकड़ने देगी Really, would you let me just hold him for a few seconds? और उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि क्या तू मुझे सिर्फ इस बच्चे को कुछ पलों के लिए पकड़ने देगी The mother didn't have much to say because by that time Eric was already in the arms of the old man. और उस वक्त जो है माँ को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो बच्चा जो है वो पहले ही उसके पास चला गया और उसने उसको उठा लिया था He cradled Eric on one of his hands and patted him on the back with the other. और उसने एक हाथ से उसे उठाया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को थपथपाना शुरू करा Eric put his arms round the man's neck and nestled his head on his shoulder. और फिर एरिक ने अपना सर जो है उस बुजुर्ग के कंधों पर रखा Closing his eyes, the old man just talked to him. और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे बात करनी शुरू करी And tears started streaming down his cheeks. और उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हुए For a long moment he held that child and loved it. और फिर कुछ पलों तक उसने उसको उठा के रखा और उसे प्यार किया And as he did, he looked up at the mother and said, you take care of this baby. और फिर जब वो ऐसा कर रहा था उसने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि इस बच्चे की तू परवाह करना इसकी केयर करना She answered, I will, sir. उसने कहा कि मैं ऐसा जरूर करूंगी Then he handed Eric back and said, thank you. और फिर उसने उसके बच्चे को उस माँ को दिया और उसने उसे शुक्रिया कहा Thank you very much. उसने कहा बहुत शुक्रिया You've given me my greatest Christmas present. उसने कहा कि तूने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन क्रिसमस का तोहफा दिया है You see, Christmas came because Joseph cared about Mary and Jesus. और क्रिसमस इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यूसुफ ने मरियम और उस बच्चे की यीशु मसीह की बहुत ही ज्यादा परवाह की थी And the message is, it will also come for us when we learn to take care of others. और हमारे लिए भी क्रिसमस तब मुमकिन होगा जब हम दूसरों की परवाह करेंगे और उनकी केयर करेंगे Are you ready for Christmas? क्या आप क्रिसमस के लिए तैयार हैं? I don't know if you'll be able to get all your shopping done or not. मुझे नहीं मालूम कि क्या आप क्रिसमस से पहले अपनी सारी की सारी शॉपिंग कर लेंगे I don't know if you'll be able to attend all the events that are planned.
और मुझे नहीं मालूम कि जितने भी इवेंट्स आपने प्लान करे हैं आप उन्हें पूरी तरह से अटेंड कर पाएंगे, but I hope that you are ready in attitude. लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या आप अपने एटीट्यूड में, अपने स्वभाव में इसके लिए तैयार हैं। I hope you are ready for the real spirit of Christmas. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर रियल स्पिरिट हो क्रिसमस की। If you're ready for that, it'll happen. और अगर आप तैयार होंगे तो फिर आपके लिए मुमकिन होगा, It'll happen in the greatest way of all. और आपके लिए इस तरह से मुमकिन होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। Jesus Christ stands before us today, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आज खड़ा होता है, inviting us to make important decisions. और वो हमें कहता है कि हम अपने जीवन के आज खास पलों को आज देखें और डिसीजंस को बनाएं, About our lives, और हमारे जीवनों को लेकर, about our eternity. और हमारे अनंत काल के जीवन को लेकर। He extends his nail-pierced hands and says, और वो अपने उन हाथों को फैलाकर खड़ा है जो कि उन कीलों से ठोके गए थे। I have given my all for you. वो आज हमें ये कहता है कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया, Will you give your all to me? क्या तुम आज अपना सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार हो? And this Wednesday, और इस बुधवार को we're going to feed the local community again. और हम आज लोकल कम्युनिटी को बुधवार को फिर दोबारा से फीड करेंगे, We're going to feed them with food for one meal. और हम उन्हें खाना खिलाएंगे, एक मील उनको देंगे। And you know, I wish there were other people here as well who could hear this message. और मैं उम्मीद करता कि आज बहुत लोग होते जो कि इस मैसेज को सुन सकते थे। If you really want to get into the spirit of Christmas, और अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप स्पिरिट ऑफ क्रिसमस में आए, let's learn to give to others who are less fortunate. और आइए हम उन लोगों को देने वाले हों कि जो कि शायद इस लायक नहीं है। Aren't you thankful you've got a roof over your head? क्या आज आप खुदा का शुक्र नहीं करते कि आपके सर के ऊपर छत है? Aren't you thankful that you've got warm clothes around you? क्या आज आप खुदा का शुक्र नहीं करते कि आपने गर्म कपड़े पहने हुए हैं? Aren't you thankful that you've got shoes on your feet? क्या आज आप खुदा का शुक्र नहीं करते कि आपने आज ऐसे जूते पहने हुए हैं जो कि आपको गर्म रखते हैं? Aren't you thankful that you've got so much food you don't know what to do? आज आप इतना शुक्र नहीं करते कि आपके घरों में इतना खाना है कि आपको पता नहीं कि इस खाने के साथ क्या करना है? Please give a thought for this Wednesday. और इस बुधवार के लिए आप जरूर सोचिएगा। And if you want to, you can see me after. और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे मिल भी सकते You हैं, can contribute towards the food that we're going to give. और आप उस खाने की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि हम देने वाले हैं। Me and Raju and even Mike in Coventry, you know, last time we cooked ourselves. और पिछली बार जब हमने इन लोगों को खाना खिलाया था तो मैंने और माइक ने और राजू ने, हम तीनों ने मिलकर खाना बनाया था। They eat and then they take away to have some more at a later date. और वो खाते हैं और फिर जो बच जाता है वो अपने साथ ले जाते हैं खाने के लिए। So let's get into the spirit of Christmas और आइए हम स्पिरिट ऑफ क्रिसमस में चलें with our attitudes. ताकि हमारे स्वभाव, हमारे एटीट्यूड अच्छे हों। Let's be just like Eric. Let's just be like him. और आइए हम उस छोटे बच्चे एरिक की तरह बने, So that we can give and we can receive the beautiful Christmas. और हम दें और एक अच्छे खूबसूरत क्रिसमस को रिसीव भी करें। The greatest gift of all और जो कि सबसे महान तोहफा है is Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह है। But you can give to others Jesus. लेकिन आज आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। Amen. Amen. Hallelujah.